पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आपको कुछ भी एक वन साइड, दे विल गिव यू वन साइड, हाँ, एंड यू हैव टू टेक आउट द अदर्स टू पेयर्स. So suppose that I have one of the number is odd, one of the number is given and that is odd. So suppose that number is n. So how can you take out the Pythagorean triplet? That will be n square minus 1 by 2, and another one will be n square plus 1 by 2. Okay, so अगर मेरे पास suppose that n is equal to 15, so 15 is the odd number. So how can I calculate? First will be 15, second will be what? 15 is square minus 1 upon 2. So this will become how much? 225. 225, 15 is square, 225 minus 1 by 2, or I can say 224 by 2, or it will be 112. Okay, another one is n square plus 1. So I will say 15 square plus 1 by 2, or I can say 225 plus 1 by 2, or 226 by 2, or I can say 113. So the triplet will be what? 15, 112 and 113. This is for your odd number, beta ji. Now if they are saying they have the even numbers, suppose the number given number is even, so what I will do? I will do first, one triplet number will be n, another triplet number will be n square by 4 minus 1. No, that's why they have done divided by 2 right already. 2n. Okay, देखो, when we have these kind of problems, so first separate every variables, because we know that if we have this kind of condition m power a and m to the power b, then I can simplify it as m to the power a minus b, right? I can do this thing. And if we have the condition m to the power a into m to the power b, then I can do m to the power a plus b, right? But if we have this condition m to the power a to the power b, then what we have? M into a into b, right? You know these kind of things. So whatever here, what we will do, first minus will be cancelled. So first separate the numericals, they are the numericals. Now separate this one, p to the power 1 in the above, and down it is how much? P cube. Now second is q power is square, and here it is q cube. Now third is r5, and here it is r. Okay, r to the power 1. Now I am applying these two. So what I will get? Can I make it simplify by using 3 table, right? So it is 8 times, it is 13 times. No more division. Now I can write it as 13 by 8 into p to the power 1 minus 3 into q to the power 2 minus 3 into r to the power 5 minus 1. Okay, so what I will get? 13 by 8 into p to the power minus 2 into q to the power minus 1 into r to the power 4. Is it okay? 13 r power 4 divided by वेरी गुड. ओके, हम क्या जानते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसके रूट का चक्कर क्लियर करना पड़ेगा. सो 9 हो गया 3 का, लेकिन 3 3 9 आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 0.3 इंटू, सो हम इसको लिख सकते हैं भैया कि 0.3 इंटू 0.3 0.3 इंटू 0.3. तो ये क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं 0.3. क्लियर? तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको 10 कर दो. क्लियर? ओके, 16. कोई बात नहीं. 16 पावर 0.16. ओके, इंटू 16 पावर 0.04 इंटू 2 पावर 0.2. ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे. हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम जानते हैं डेसिमल्स को हटा के नीचे क्या लिखना होता है. तो देखो 16 की द पावर, पहले हम लोग डेसिमल का चक्कर क्लियर करेंगे. तो ये हो जाएगा 16 by 10, अरे सॉरी 16 by 100 हो जाएगा. ये हो जाएगा 16 टू द पावर 4 by 100, और ये हो जाएगा 2 इंटू पावर 2 by 10. क्लियर? अब देखो ये पावर्स को क्लियर करेंगे. क्यों? क्योंकि सारे के बेस स्मॉलेस्ट 2 होने वाला है. तो 2 की पावर 16 कब आएगी? 4 आएगी. तो 4, और ये हो जाएगा 16 by 100. ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 4 by 100, और ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 by 10. क्लियर है? अब हाँ, अब इसको क्लियर करो. अब ये हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू 16 by 100, और ये हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू 4 by 100, और ये हो जाएगा 2 by 10. क्लियर? अब ये सारे के सारे बेस हैं बेटा. अब बेस को हमें क्या, ये सब प्लस हो जाते हैं. तो 4 by 16 by 100 प्लस 4 इंटू 4 by 100 प्लस 2 by 10. तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा. ये 4 by 16 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 20, यही तो होगा. अब करो 64 प्लस 16 प्लस 20 by 100 क्या हो जाएगा बताओ? ये तो 100/100 हो जाएगा. 100/100 यानी कि 1. ठीक है, तो ये कुल मिला आया क्या? 2 to the power 1 यानी कि 2.
क्लियर? नाउ सी, ऐसे जो क्वेश्चंस आपने बताया ना, ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व नहीं होते। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला, बेस्ट फॉर्मूला बता रही हूँ। बेस्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, चाहे आप पावर कुछ भी बना दो, ये आपको हमेशा काम आएगा। क्या है वो फॉर्मूला? देखिए, अगर मेरे पास a टू द पावर n है माइनस b टू द पावर n है, तो हम इसको एक एक्सपेंशन लिखेंगे a माइनस बी, फिर a टू द पावर n माइनस वन प्लस a टू द पावर n माइनस टू इंटू बी प्लस a टू द पावर n माइनस थ्री इंटू बी स्क्वायर। ऐसे करते 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 चला जाएगा। फिर a b टू द पावर n माइनस टू प्लस b n माइनस वन। ये तुम्हारा एक्सपेंशन होता है बेटा। क्लियर है? अब अगर मैं इस एक्सपेंशन में सब जगह पर 5 पुट करवा दूँ तो क्या मेरा काम बन जाएगा क्या? कैसे बनेगा? देखो, मैं यहीं पे कर रही हूँ एक्स वाई टू द पावर 5 और एक्स टू द पावर 5। तो सबसे पहले तो y माइनस एक्स लिख दूंगी इसके हिसाब से। फिर क्या डालूंगी अंदर बताओ? y टू द पावर 5 माइनस वन यानी कि 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस टू, 4 माइनस टू इज 2 इंटू एक्स प्लस y टू द पावर n माइनस थ्री इंटू बी स्क्वायर यानी कि वाई 5 माइनस थ्री। वाई टू द पावर 5 माइनस थ्री कितना होता है? यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, सॉरी। वाई टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो क्योंकि ये 5 था इसलिए इतना बड़ा जा रहा है। नेक्स्ट 5 माइनस 4 होगा तो 1 हो जाएगा, तो y टू द पावर 1 x टू द पावर 3। ठीक है, अब y की पावर 0 हो जाएगी, y की पावर 0 आ जाएगी, तो वो तो चला गया, बचा क्या मेरे पास? x टू द पावर 4। समझ गए? इस एक्सप्रेशन की वजह से तो मेरा फाइनली क्या आया? y माइनस एक्स और y4 प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4। तुम कहीं भी कुछ करवा लो, यही इसका आंसर है। ओके, जस्ट नोट इट डाउन एंड पुट इंपॉर्टेंट एंड 3 स्टार्स। जब भी आपको ये दिया रहे ना कि हमारे पास कोई नंबर रेशियोज में है, ओके, वेन एवर वी हैव गिवन द सम नंबर्स इन रेशियो, सपोज हियर इट इज गिवन 2:3:4, राइट? सो वी विल मल्टीप्लाई बाय सम वेरिएबल, multiply by some variables, so automatically it becomes 2x, automatically it becomes 3x, and automatically it becomes 4x. Clear? Now they are saying that they are cubes, so it will be 8x cube, it will be how much? 27x cube, and this will be how much? 64x cube. Now they are saying that sum of their x cubes, that is 8x cube plus 27x cube plus 64x cube. Tell me the answer. 99x cube. Now they are saying this sum is equal to how much? This sum is equal to how? 3, 3, 4, 1, 2, 5. Like this one is the number. So first I will do the division. 3, 3, 4, 1, 2, 5 divided by 9. Tell me the answer. Answer karna. 0.003375. Okay. Now I have to take out the cube root. If I take out the cube root, then I can easily find the value of x cube. Okay. So I have to take out the cube root 0.003375. सो अगर सारे जीरोस को हटाना पड़े तो 1 2 3 4 5 6, सो व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 3375 डिवाइडेड बाय हाउ मच? टेल मी। 1 2 3 4 5 6 and then it is cube root. So can I say that 1/100 into cube root of 3375? I can easily say this. Now take out the cube root. See, its value will be 0.15. Okay, I am saying you its value will be, entire value will be 0.15. Okay, so when my x value is 0.15, can I say that 2x will be how much? 2 into 0.15, 3 into 0.15 and 4 into 0.15. Okay, so take out the value. 15 to the 30, so 0.30, 15 3s are 45, so 0.45 and 15 4s are 60, so 0.60. So these are the three numbers. Okay, so you can write it in decimal, you can write in fraction also, no matter. Clear? I have factorize. First I will start from factorize. Factorize. Okay, so very simple factorize it is. 3x square y minus 6y square x. How can you start it? समझ में आया ना? ये वाला कैसे कॉमन लेके करेंगे? See the next question बेटा. ऐसे नहीं, you can't write like this way because you know all the formulas. Then why should I write like this way? See, अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं तो कैसे करेंगे? We have a to the power 12 x to the power 4 minus a to the power 4 x to the power 12. Okay, so first I will take out odd. See, the smallest is 4, so I can take out a to the power 4 x to the power 4. तो b तक क्या रह जाएगा? a to the power क्या रह जाएगा बताओ? 8. वेरी गुड. 8 माइनस 4 तो कॉमन ले लिया, x टू द पावर 8, राइट? अब देखो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि a टू द पावर 4 x टू द पावर 4. अब देखो ये चीज़ जो है a टू द पावर आप 4 स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 स्क्वायर लिख सकती हो. आई कैन राइट, राइट? सो अब इस पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है? वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली.
बी स्क्वायर वाली. सो आई विल गेट a4 x⁴. यहाँ पर a4 प्लस x4 एक बार और a4 माइनस x4. ठीक. अब फिर इसको ब्रेक करो. इसको ब्रेक करके क्या कर सकते हैं बताओ? a⁴ का होल स्क्वायर माइनस x⁴ का होल स्क्वायर. राइट. तो ब्रेक करके मुझे क्या मिलेगा? a² प्लस x², सॉरी, और a² माइनस x². राइट. फिर इसको ब्रेक करूँगी तो ब्रेक करके क्या मिलेगा? a प्लस एक्स और a माइनस एक्स मिलेगा ना. तो फाइनली मैं सब चीज़ों का मिक्सचर बना के एक आंसर नहीं लिख सकती कि a4 x4 तो सबसे कॉमन. इसको ब्रेक करने पर क्या मिला? a4 प्लस x4. ठीक है. लेकिन इसको ब्रेक करके हमें ये मिला जो कि ये मिला, तो ये आ जाएगा a² प्लस x². लेकिन फिर से इसको ब्रेक करके हमें ये मिला, तो हम कर देंगे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स. ओके.